Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 2, subject code BP503T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor in the Department of Pharmacology at Ramis Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, dear learners, today we are going to discuss about the different pituitary hormones and their antagonist. So, this is the first lecture of this presentation. So, what are the learning objectives? At the end of this lecture, the learners will be able to understand the various releasing and the inhibitory hormone from the hypothalamus and their correlation with the pituitary gland. They are able to explore the physiological, pathophysiological aspects of the growth hormone, prolactin and the gonadotropins, and they are also able to analyze the pharmacologic action of the agonist as well as the antagonist of these hormones. So, let us start with the growth hormone. So, growth hormone is the hormone, as name indicates, which is regulates the different function of the body growth. ठीक है, okay. So, it is made up of 191 amino acids and the molecular weight is 22,000. ठीक है. When we talk about the physiology, what is the physiological function of the growth hormone? So, basically they are required for the growth and the attainment of the adult stature. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो हमारी रिक्वायर्ड ग्रोथ है उसको अटेनमेंट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिक्वायर्ड है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन. नाउ इट आल्सो प्रमोट्स द बोन ग्रोथ. ठीक है, बिकॉज ये बिना बोन ग्रोथ के आपकी बॉडी का जो या आपका जो हाइट है या आपकी बॉडी का जो फिजिक है वो ऐसे नहीं चेंज होगा. ठीक है ना. तो इट स्टिमुलेट्स द बोन ग्रोथ एज वेल एज द हाइपरपैल्सिया ऑफ सर्टन ऑर्गन्स. ठीक है ना. ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन. इसको आप ध्यान रखना, ब्रेन और आई का ग्रोथ जो है वो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल नहीं करता है. ठीक है ना. इन एब्सेंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन द सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट टेक प्लेस. द ग्रोथ हार्मोन ऑल्सो प्रमोट्स द रिटेंशन ऑफ नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड द मोर प्रोटोप्लाज्म, एंड ड्यू टू दिस द प्रोटीन सिंथेसिस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. ठीक है ना. Okay, now what growth hormone can do? They can also affect the carbohydrate metabolism as well as the fat metabolism. They promotes the utilization of fat and spares the carbohydrate. ठीक है, यानी कि फैट को ये डिक्रीज करेंगे, डिग्रेड करके उससे एनर्जी लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट को रहने देते हैं. ठीक है ना. नाउ anabolic and growth promoting effects of GH are indirect and mediated by a hormone which we studied in the previous lecture, that is the somatomedins or the insulin like growth factor. ठीक है. Now how the regulation of growth hormone occurs? ठीक है. तो growth hormone is controlled by two type of hormone which we studied in the previous lecture. The first one is known as the releasing hormone. ठीक है, यानी कि वो हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा. दिस इज द हार्मोन विच सीक्रेट्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. ठीक है, ऑल्सो नोन एज द सोमैटोट्रोपिन. ठीक है ना. नाउ अब व्हाट GHRH कैन डू इफ इट इज गिवन IV. ठीक है ना. सो GHRH स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंस्टेंटली. ठीक है, अगर आपने IV रूट से दिया तो ये सोमैटोट्रॉप को स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस में और लेटर ऑन दिस विल रिलीज द व्हाट ग्रोथ हार्मोन. ठीक है. Okay. Now, sermorelin is the synthetic analog of GHRH. They are very commonly used as the diagnostic agent for testing the capacity of pituitary gland in the patient of dwarfism or the short stature. ठीक है ना. Now, growth hormone releasing inhibitory hormone is the second hormone which is secreted by the hypothalamus, which is also known as the somatostatin or SST. ठीक है. What it can do? It can inhibit the secretion of growth hormone, TSH. ठीक है, insulin from the pancreas and gastrin from the GIT. ठीक है. They are also known as somatostatin. They have a short half life, they have a lack of specificity, and they only you can say not only inhibit the growth hormone secretion, but they can also regulate the secretion of TSH, insulin and gastrin, and this is the lack of specificity. मतलब इसके अलावा ये बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए ये एक प्रॉब्लम है इनके साथ. ठीक है ना. Now somatostatin is generally used for prevention of bleeding from the especially the patient of esophageal varices and the upper GI and the intestinal bleeding. Now this is the diagram which depicts the regulation of the growth hormone. Now this is the hormone hypothalamus. Hypothalamus stimulate the you can say pituitary gland, anterior pituitary gland, by the help of two type of hormone, either GHRH or
GHRIH, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आप देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसने स्टिमुलेट किया बाय GHRH, तो इसके स्टिमुलेट करने की वजह से क्या हुआ, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकला और इस ग्रोथ हार्मोन ने बहुत सारे फंक्शंस को स्टिमुलेट किया, सच एज उसने एडिपोसाइट्स को स्टिमुलेट किया, उसने लीवर को स्टिमुलेट किया, लीवर के स्टिमुलेशन की वजह से इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर जो है वो स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से एनाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। बट GHRH का क्या काम है, जैसे ही IGF एक सर्टन लेवल से ज्यादा होता है, लिमिट से बढ़ने लगता है, तो दिस विल एक्ट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक्ट बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड इनहिबिट द हाइपोथैलेमस बाय द हेल्प ऑफ GHRIH, ठीक है, और सोमैटोस्टैटिन, ठीक है ना। नाउ जनरली हार्मोन विच इज नोन एज ग्रेलिन, और हंगर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको बहुत सारे लोग। ग्रेलिन एक हार्मोन है विच इज रेगुलेटिंग द हंगर, ठीक है, एंड इफ ghrelin is secreting more, it means it indicates the hypoglycemia in the particular person, ठीक है। if hypoglycemia was there, the ghrelin hormone is secreted from the stomach and this will stimulate the hypothalamus or GHRH and this will lead to the secretion of GH, ठीक है। तो this is the mechanism by which growth hormone regulation was seen. Now what are the pathological role of the growth hormone? Now this is the diagram which you can say कि कंपैरेटिव डायग्राम है, ठीक है। नाउ हेयर यू कैन सी दिस इज अ चिल्ड्रन हु हैव अ शॉर्ट स्टैचर, this is a person or this is a child who have a you can say normal stature, whereas this one having a you can say a very long stature, ठीक है ना, ठीक है। तो अब दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन इज हाइपर सिक्रीटेड, it means it will lead to the two type of disorders, either gigantism or acromegaly, ठीक है। Now what is the difference between these two? Gigantism is a disorder which is generally seen before the puberty, यानी it means 18 साल के पहले, 18 years before the 18 years of the age, this particular disorder was seen in the children's, and whereas acromegaly is the disease which is seen in the adults after 18 year of age, ठीक है ना। acromegaly का अगर if you can ask me a example of acromegaly patient, the wrestler खली, you heard the name, ठीक है। तो खली was suffering from acromegaly, ठीक है ना। अब you can see what is the difference, gigantism में हाइट बढ़ेगा, ठीक है, बट what is happening in the acromegaly? acromegaly में जनरली जो ये आपका ये प्रोट्रूडेड होने लग जाता है, आपका जो चिन्ह है वो प्रोट्रूडेड होने लगता है। यहाँ पर आप देखो ये प्रोट्रूडेडमेंट होने लगा, ठीक है। आवाज़ की स्लरिंग होने लगती है, आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, आपके टंग की जो डायमेंशंस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, डायमीटर ज़्यादा हो जाता है, उसके थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, इसके वजह से स्लरिंग होने लगती है, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम, वेयर एज हाइपोसिक्रीशन ऑफ GH विल लीड टू द ड्वार्फिज्म, हाँ, शॉर्ट स्टेचर ऑफ द पर्सन इज नोन एज व्हाट, ड्वार्फिज्म, ठीक है। नाउ what type of drugs we can use to treat these type of syndromes, ठीक है। तो octeroid is the hormone GH antagonist and this drug is very you can say prominently affect the secretion of GH. What it can do, it can inhibit the growth hormone secretion, ठीक है, it is very potent as well as the long acting GH antagonist, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन के 45 टाइम्स ज़्यादा मोर पोटेंट है ये, ठीक है। व्हाट इट कैन डू, इट कैन कंट्रोल्स द सिम्टम ऑफ पेशेंट ऑफ द गैस्ट्रिनोमा, ठीक है, VIP secreting tumor and the breast cancer. Now as it is to inhibit the GH secretion from the pituitary gland, it will also sometimes you can say मतलब used in the patient who having the pituitary tumor or the acromegaly, ठीक है ना। Now hyperglycemia is very less common with this drug, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन के साथ हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा हो रहा था, बट हाइपरग्लाइसीमिया जो है यहाँ पर इसके साथ बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। नाउ what are the side effects? The abdominal cramps, nausea, staturia and gallstone are the very common side effects, ठीक है। तो अब हम बात करें दूसरे एंटागोनिस्ट की, तो दिस इज द पैग्मिसोमेंट, ठीक है। इट इज गिवन बाय द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली, अप्रूव्ड ड्रग फॉर द एक्रोमेगाली। इट व्हाट इट कैन डू, इट
competitively bind with the GH receptor, and by binding with that it inhibits the level of IGF. ठीक है ना, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के लेवल को ये क्या कर देता है, इनहिबिट कर लेता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्रोलैक्टिन. इट इज 199 अमीनो एसिड protein. 23,000 is the molecular weight. They are chemically similar to the growth hormone and causes the milk secretion from the crop gland of the pigeon and later on the humans. ठीक है. What are the physiological function? तो generally primary stimulus is with the conjunction of estrogen, progesterone and several other hormones which lead to the growth as well as the development of the breast during the pregnancy. तो breast engorgement जो है वो generally इसके साथ देखने को मिलता है. Promotes proliferation of ductal as well as the acinar cells in the mammary gland. They also suppresses the hypothalamo and hypophyseal pituitary gonadal axis, and this will lead to the inhibition of GnRH release. ठीक है, gonadotropin release. ठीक है. High level of prolactin is responsible for the lactation amenorrhea. ठीक है, this is the disease which is generally seen in the female who are lactating. ठीक है ना, and amenorrhea is the absence of the menstruation cycle. They also inhibit the ovulation, infertility in some ladies. ठीक है, or some females. ठीक है. Prolactin acts on the receptor which give its effect by the JAK-STAT pathway. ठीक है. What it can do? The prolactin receptor is expressed on the surface of target cell, where the prolactin PRL will get bind with that receptor, and then they will stimulate the JAK साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज और जैक-स्टैट. ठीक है ना, और इसके स्टिमुलेशन की वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो हैं दैट विल बी रेगुलेटेड. ओके, नाउ हाउ द रेगुलेशन ऑफ PRL इज सीन. ठीक है, तो प्रोलैक्टिन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है ना, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करते हैं, बट देयर इज एन हार्मोन ऑल्सो देयर विच इज नोन एज PRIH, प्रोलैक्टिन inhibiting prolactin releasing inhibiting hormone. ठीक है ना, this is also secreted by the hypothalamus, और ये क्या कर रहा है, PRH की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे रहा है. ठीक है. Now some drugs are also there which can inhibit the or which regulates, not inhibit, you can say regulate the level of PRL. तो dopaminergic agonist like dopamine, bromocriptine and carbagolin, they decreases the plasma prolactin level, whereas dopaminergic antagonist, ठीक है ना, are the drugs which can stimulate or which can hyper secrete the प्रोलैक्टिन लेवल. ठीक है ना, हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन देखने को मिलता है. यानी अब आप इसको सिंपल में समझ लो कि डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जो हैं वो प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करेंगे, वेयर एज डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो हैं उसके लेवल को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. ठीक है, तो इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है. अगर ये दोनों का डिस्टर्बेंस हुआ तो आपको हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया या फिर हाइपोप्रोलैक्टिनेमिया देखने को मिल सकता है. व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल एक्शन एसोसिएटेड विद द प्रोलैक्टिन? तो जनरली इट इज हेल्पफुल इन इंड्यूसिंग द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स. ठीक है, ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ excessive prolactin will lead to the hyperprolactinemia, okay, which is generally seen in the you can say endocrine disorder class. Now how it can happen? It is generally caused by the adenoma in the prolactin secreting cells. ठीक है ना, और वहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जब एडुमा हो जाता है तो ट्यूमर की वजह से ज़्यादा प्रोलैक्टिन निकलने लगता है. ठीक है, एंड हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन विल लीड टू द यू कैन से द इंटरफेयर विद द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ द डोपामिनर्जिक सेल्स. ठीक है. नाउ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म विद द इंक्रीज TRH लेवल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया. ठीक है. अब अगर हम बात करें तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन causes the erectile dysfunction in the males, whereas hypersecretion or hyperprolactinemia in females can cause the galactorrhea as well as the absence of the menstruation cycle, or infertility is also seen in the females. ठीक है. Now what type of inhibitors which we can use apart from the PRIH? ठीक है, तो bromocriptine it is a you can say D2 agonist. What it can do? It is a semi-synthetic ergot alkaloid. It inhibits the spontaneous as well as the TRH induced prolactin level. ठीक है ना. What it can do? It can
अगर अगर TRH की वजह से या फिर हमारे को स्पॉन्टेनियस प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ रहा है हमारी बॉडी में, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रोमोक्रिप्टिन विच एक्ट्स बाय द डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है ना. व्हाट इट कैन एक्ट, इट एक्ट्स ऑन द D1 रिसेप्टर, ठीक है ना. व्हाट इट कैन डू, इट कैन नॉर्मलाइजेज द सीरम प्रोलैक्टिन लेवल इन द 70 to 80% of the patients and decreases the tumor side in the 50% of the patients which are suffering from the adenoma. Okay. Now, what are the side effects? Nausea, vomiting, headache, postural hypertension, nasal congestion, psychosis, hallucination, nightmares, insomnia. These are the common one or very मतलब you can say normally seen in the patient, ठीक है ना. Used in the they are also used in the management of acromegaly, but अगर हम बात करें तो हाई कंसंट्रेशन में जब हम इसको यूज करेंगे तो दे ऑल्सो हैव द एंटी पार्किंसनिज्म इफेक्ट. नाउ परगोलाइड अर्गर डेरिवेटिव है, दिस इज द नेक्स्ट इनिबिटर ऑफ द प्रोलैक्टिन, FDA अप्रूव्ड है एंड वेरी कॉमनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज एंड द हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया. नाउ साइड इफेक्ट्स आर द सेम विद द ब्रोमोक्रिप्टिन. डोजेस जो हैं 0.025 मिलीग्राम देना है इसको बेड टाइम पर एंड धीरे धीरे इसका डोज जो है 0.5 मिलीग्राम तक हम बढ़ाते हैं. कार्बागोलिन इज ऑल्सो अर्गट अल्कलॉइड. इट हैव अ वेरी हाई अफिनिटी एंड द ग्रेटर सेंसिटिविटी फॉर द D2 receptor. It is very potent, approx 4 times of the bromocriptine and half life is very long, that is around 65 hours, ठीक है ना. Now this is FDA approved drug for the treatment of hyperprolactinemia and they have a very less tendency to cause the postural hypotension or the CNS side effects, ठीक है ना. Gonadotropin are the next class of the hypothalamic hormones which generally regulate the secretion like follicular stimulating hormone or the luteinizing hormone, ठीक है ना. These are the two gonadotropin hormones, ठीक है. What they can do, they are basically a glycoproteins, ठीक है. ये दोनों हार्मोन जो है they are glycoproteins and they consist of 23 to 28% of sugar and 2 peptide chains, ठीक है. यानी कि they have a 2 peptide chains and glycosidic linkage was there, ठीक है ना. The alpha chain is comprised of the 92 amino acids whereas you can say बीटा चेन जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. मतलब अल्फा चेन तो 92 अमीनो एसिड का रहेगा FSH और LH में, ठीक है. बट बीटा चेन जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. FSH में वो 111 अमीनो एसिड का बन जाता है और LH में ये 10 अमीनो एसिड थोड़ा और ज़्यादा जुड़ जाते हैं और 121 अमीनो एसिड का बन जाता है. नाउ पैराडॉक्सिकली द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FSH इज अराउंड 33 किलो डाल्टन and which is greater than the weight of the luteinizing hormone despite of the more number of the you can say what amino acids, ठीक है ना. तो ये paradoxically थोड़ा सा differences हैं. Now what are the physiological function of the gonadotropins? FSH and LH they generally act in concert to promote the gametogenesis and the secretion of the gonadal hormone. Now starting with the follicular stimulating hormone, generally in females it induces the follicular growth, development of ovum and secretion of estrogen, whereas in males it supports the spermatogenesis. यानी कि अब आप इसको समझ लो अच्छे से कि हमारी बॉडी में स्पेशली मेल्स में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करना और साथ साथ में हमारे बॉडी में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर जो सिंथेसिस हो रहा है स्पर्म्स का या जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है उसको कंट्रोल करना, ठीक है. फीमेल्स में ये क्या करता है, ये फॉलिकुलर ग्रोथ को बढ़ा देगा और ओवम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है. नाउ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन? तो इट इंड्यूसेस द प्री ओवुलेटरी स्वेलिंग ऑफ द राइपन Graafian follicle. The Graafian follicle which is matured by the FSH is ripened by the LH, ठीक है ना. एंड ट्रिगर्स द ओव्यूलेशन. अब यहाँ ओवम तो बन गया था FSH के इफेक्ट में बट उसको रिलीज कराने की जिम्मेदारी किसके पास है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की, विच इज फॉलोड बाय द ल्यूटेनाइजेशन ऑफ द रप्चर्ड फॉलिकल एंड सस्टेन द कॉर्पस ल्यूटियम टिल द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रेसिया ऑफ द रिमेनिंग फॉलिकल्स, मतलब एंडोमेट्रियम की सफाई भी ये करते हैं, ठीक है ना. प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन अकर्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH. इसको आप ध्यान रखना कि LH के जो सिक्रीशन मतलब LH जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना. मेल्स में LH जो है वो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को मेंटेन करता है एंड इट विल हेल्प यू कैन से for the interstitial cell stimulating hormones, ठीक है. and by this the level of synthesis of testosterone is regulated. Now distinct LH as well as FSH receptors are expressed on the different target cells, ठीक है. and they generally act by the GPCR mechanism, G protein coupled receptor. और
इसको जनरली CMP पाथवे से ही हम कनेक्ट करेंगे. नाउ what it can do, it can stimulate the gametogenesis as well as it converts the cholesterol into the testosterone and progesterone and the estrogen. ठीक है, यानी कि दो काम यहाँ कर रहा है वो क्या क्या, एक तो ये हमारे गैमेटोजेनेसिस जो है उसको बढ़ा रहा है, गैमेट्स के जनरेशन में हेल्प कर रहा है, और साथ साथ में ये कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर रहा है और 3 तरह के ये नए हार्मोन्स बना रहा है जिसको हम कह देते हैं गोनेडल हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, progesterone and the estrogen. ठीक है ना. Now how it is regulated, तो generally hypothalamus releases the hormone GnRH. ठीक है, this GnRH will stimulate the anterior pituitary gland, and this anterior pituitary gland secretes 2 type of hormones. The first one is the luteinizing hormone and the second one is the follicle stimulating hormone. Now what is the function, तो luteinizing hormone जो है generally वो अपना एक्शन देता है Leydig cells के ऊपर, whereas follicle stimulating जो है वो अपना इफेक्ट देता है Sertoli cells के ऊपर. अगर फीमेल्स की बात कर लेंगे तो वहां पर ये ओवरीज हो जाएंगी. ठीक है ना. नाउ एक बार जब ये लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स के ऊपर अपना काम करता है तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होता है और साथ साथ में एक और हार्मोन बनता है जिसको हम कहते हैं इनहिबिन. ठीक है, तो इनहिबिन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ठीक है, इसी के साथ साथ अगर यही दोनों हार्मोन LH जो है और FSH जो है वो अगर काम कर रहा होगा फीमेल के ओवरीज के ऊपर तो वो वहाँ पर क्या करेगा, एक तो फॉलिकल साइकिल को स्टिमुलेट करेगा और साथ साथ में ओवम के फॉर्मेशन को हेल्प करेगा, और फिर LH जो है दैट विल हेल्प इनटू द रिलीज ऑफ द दैट पर्टिकुलर ओवम. ठीक है. नाउ अब जैसे ही ये लेवल एक्सेस होने लगेगा, ठीक है ना, तो दिस विल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये क्या करेगा, इनिबिट कर देगा GnRH को एज वेल एज द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को. ठीक है ना. यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, इनहिबिन का भी वही काम है. ये क्या, ये पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, किसका, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए. नाउ this is the all about the regulation of gonadotropin. In general, feedback inhibition, LH is more marked than the FSH, and a particular peptide known as inhibin is released from the ovaries and testes which inhibit the FSH but not the LH. ठीक है, तो यानी आप ध्यान रखना FSH के सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है इनहिबिन. ठीक है ना. ठीक है, LH के सिक्रीशन को टेस्टोस्टेरोन करेगा और कोई नहीं करेगा उसको. ठीक है. नाउ डोपामिन इज ऑल्सो इनहिबिटिंग द LH secretion. Testosterone is weaker than the estrogen inhibiting the GN secretion but have effect on both FSH as well as the LH. GnRH acts on the gonadotropes through GPCR mechanism and they will lead to act by the IP3 DAC pathway by stimulating the calcium label. What is the therapeutic effect? Therapeutic application of gonadotropin, amenorrhea, infertility में यूज़ करते हैं इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इट इज़ वेरी इफेक्टिव. ठीक है, मैनोट्रोपिन FSH और LH का फॉर्मुलेशन आता है मार्केट में बहुत, एंड इट इज़ वेरी कॉमनली यूज बाय द IVF सेंटर्स. ठीक है. नाउ मेल हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म के अंदर भी ये काम करता है, यानी कि द मेल हु आर सफरिंग फ्रॉम द हाइपोगोनेडिज्म, मतलब जिनके अंदर GnRH का लेवल कम हो रहा होगा वहाँ पर भी ये काम करता है. मतलब वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है. जनरली वहाँ पर जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं FSH और LH का कॉम्बिनेशन. ठीक है, और कभी कभी हम इसको मतलब आप कह सकते हो कि अकेले भी यूज़ करके इफेक्ट चेक कर सकते हैं. ठीक है ना. एडवर्स इफेक्ट्स की बात कर लें तो हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ ओवरी देखने को मिलता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन, ओवेरियन ब्लीडिंग, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, प्रीकॉकियस पबर्टी, मतलब टाइम से पहले प्यूबर्टी आ जाना. ठीक है, एडिमा, हेडेक एंड द मूड स्विंग्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड एज ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. जो है मैंने पहले बता दिया, दे आर इंजेक्टेड IV for the prompt release of LH and FSH followed by the elevation of gonadal steroidal level. half life 4 to 8 मिनट है and ये पल्सटाइल मूवमेंट्स में आते हैं. इट हैज़ बीन यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस इन द मेल एज वेल एज द फीमेल हाइपोगोनेडिज्म. नाउ सुपर एक्टिव और लॉन्ग एक्टिंग GnRH एगोनिस्ट आर ऑल्सो यूज सच एज गोसेरेलिन. ठीक है ना, गोसेरेलिन या फिर ल्यूपोरोलाइड. ठीक है, एंड दे आर वेरी कॉमनली यूज्ड एंड वेरी पोटेंट GnRH एनालॉग्स. ठीक है, और इनका जो हाफ लाइफ है दैट इज मोर देन 6 आवर्स. ठीक है. नाउ नेफ्रेलिन की अगर हम बात कर लें तो लॉन्ग एक्टिंग GnRH एगोनिस्ट है 150 टाइम्स मोर पोटेंट देन द नेटिव GnRH. ठीक है, एंड जनरली इट इज़ यूज्ड बाय द इंट्रानेजल स्प्रे. ठीक है, वेरी कॉमनली इट इज़ यूज्ड, बट इसको हम
ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं बिकॉज इट कैन डिग्रेडेड ना, ठीक है। तो इंट्रानेसल रूट से हम लेते हैं इसको। कभी कभी सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस भी ले सकते हैं हम। डाउन रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी, व्हाट इट कैन डू, इट कैन डाउन रेगुलेट द पिट्यूटरी GnRH receptor, and generally they are very commonly used in the females who are suffering from the fibroid, uterine fibroid, ठीक है। उसके लिए जो डोज है वो है नेफ्रेलिन के 200 माइक्रोग्राम BD इंट्रानेजल, ठीक है। मतलब हमको 2 बार पफ्स लेने होंगे 3 to 6 मंथ्स तक, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस में भी हम इसको यूज करते हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव। 200 माइक्रोग्राम दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर हमको लेना है अल्टरनेट पे, ठीक है। 6 महीने तक ट्रीटमेंट करेंगे तो दे आर वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट द एंडोमेट्रियोसिस ऑल्सो। नाउ GnRH एंटागोनिस्ट की अगर हम बात कर लें तो गैनिरैक्सिल, सेटोरैक्सिल, डेगारैक्सिल inhibit the GnRH secretion. They are generally given by the subcutaneous injection which inhibit the luteinizing hormone surge during the ओवेरियन स्टिमुलेशन इन IVF, ठीक है। तो जनरली इसका यहाँ पर एप्लीकेशन बहुत जो होता है IVF में, LH का जो सर्ज होता है बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम GnRH एंटागोनिस्ट देते हैं सच एज गैनिरैक्सिल और सेटोरैक्सिल, ठीक है ना। दे हैव अ लो रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, प्रोड्यूस्ड GN सप्रेशन बाय कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म, ठीक है। यानी कि ये क्या करेंगे, उस रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाएंगे जिससे GnRH जाके बाइंड कर रहा था, ठीक है, या FSH LH जाके बाइंड कर रहे थे, और वहाँ पर बाइंड करके कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म के थ्रू ये उसको रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस करने के बाद जो GnRH का या जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का जो सिक्रीशन हो रहा था उसको क्या कर देंगे, डाउनग्रेड कर देंगे। तो दिस इज द वेरी कॉमन एंड वेरी बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द GnRH एंटागोनिस्ट। These are the references. Thank you for your patience listening.